Preview. Hi guys, welcome to my channel New Basic Learning, and today we are going to start about the Act 3 Scene 2 in English. This is the part 2 of this act, because in the last act, or you can say in the last part, I have done up to Act 3 Scene 2. Half part I have completed, and today I'll complete the half part because this scene is so long, and if you will see continuously, then you will feel tired and you will get bored. So I don't want you to get bored, so I'll complete this in half parts so you can understand this easily. So before starting the video, I just only want to request you that if you are new on this channel, then do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon to never miss an update. And yeah, if you like this video, please hit the like button, and if you have any queries and doubts regarding your concepts, then you can DM me on Instagram and Facebook, as I mentioned this link of the ID, or you can say username of my Instagram and Facebook in the link in the description box. You can go and check that, and if you have any query, then you can ask me. So in this we are going to start about Bassanio. If you remember, we have completed up to Act 3 Scene 2 up to Portia's conversation we have completed. So let's start about what Bassanio is saying. Bassanio: so may the outward shows be list themselves, the world is still decide with ornament in law what plea to so tainted and corrupt, but being reseasoned with a glorious voice obscures the show of evil in religion what demand error, but some sober brow will bless it and approve it with a text, hiding the grossness with fair ornament. अब यहाँ बसानियो कह रहा है कि जितना अपने आप, मतलब अपनी आउट अपीयरेंस, पर्सन एक ऐसा है, यहाँ पे वो एक तरह से एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो अंदर से इतना करप्ट होता है, और आउटसाइड से वो ऐसे शो करता है जैसे वो बहुत नेक, बहुत अच्छा इंसान हो, अपने आप को छुपाता है, बिल्कुल अपने आप की जितनी भी पोलाइटनेस होती है वो शो करता है, वो शो ऑफ करता है कि हाँ बहुत पोलाइट हूं मैं, लेकिन वो सारा जितना भी अपना करप्ट होता है वो सब छुपा लेता है. ठीक है. द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव विद ऑर्नामेंट, तो यहाँ पे कह रहे हैं वो आउटर अपीयरेंस को लेकर, मतलब एक आउटर अपीयरेंस को लेकर अपना सब कुछ चूज कर लेता है और अंदर की जो चीज है वो चूज नहीं करता. What damned an error, but some sober brow with blessed it and approve it with a text. Okay, hiding the grossness with fair ornament. लोग गलत काम करके भी अपनी, मतलब इतना गलत काम करते हैं और कसमें खाते रहते हैं कि भगवान की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, और सब मतलब गलत काम करते हैं और कसम भी खाते हैं फिर कि हाँ हम कसम खा रहे हैं, हमने ऐसा नहीं करा, लेकिन जब भी वो कर रहे होते हैं वो काम. There is no wise so simple but assumes some mark of virtue on his outward parts. How many outskirts whose heart are all as false as stairs of sand, wear yet upon the chins the beards of Hercules. Beards of Hercules यहाँ पे इसलिए बोला गया है, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हरक्यूलिस उसको बोला जाता था जो एक इंसान था माइथोलॉजी में. अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था, उसकी जो बियर्ड थी वो काफी लंबी थी, तो उसको सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन माना जाता था. वो काफी स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा उस पे सब यकीन करते थे और उसको सबसे ज्यादा मानते थे कि हाँ ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये काबिल है. ठीक है. और फिर यहाँ पे आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे बोल रहा है वो वियर येट अपॉन दिस चिंस, मतलब यहाँ से वो अंदर से इतना वीक है लेकिन अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. ओके. और ये भी बता रहे हैं कि द बियर्ड ऑफ हरक्यूलिस, मतलब वो बियर्ड ऑफ हरक्यूलिस को इसलिए बोल रहा है, इसलिए डिनोट कर रहा है उसने यहाँ पे ये वर्ड कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड रखते हैं हरक्यूलिस की तरह और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, अंदर से वो वीक है लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं. And these assumes but failures excrement to render them read out. Look on beauty and you shall see 'tis purchases by the wage, with therein works a miracle in nature, making them lightest that we are most of it. अब वो कह रहा है यहाँ पे कि जो लेडीज हैं वो अपने बालों को गोल्डन कर लेती हैं, गोल्डन करके अपने बालों को लहराती हैं कि जैसे उनके बहुत बाल अच्छे हैं. अब मतलब अंदर से अपनी ब्यूटी को बिल्कुल खत्म कर लेंगे, बाहर से अपना जो उनका असली चेहरा है वो बिल्कुल छुपा लेंगे, मेकअप कर लेंगे, बाल अच्छे से बना लेंगे, गोल्डन करवा लेंगे,
लेकिन अंदर से कैसे है वो उनको ही पता है, और वो अपने आउटर जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज कर लेंगे अपना, ठीक है। अपॉन मतलब इस पूरी कॉन्वर्सेशन में यही बताया गया है कि अपने इनर और आउटर अपीयरेंस को लेकर पूरा ही ये जो कन्वर्सेशन है वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा कि इंसान जो है अपनी इनर ब्यूटी या फिर कह सकते हैं अपनी वीकनेस को छुपा लेता है बाहर के आउटर अपीयरेंस को मेंटेन कर कर, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन मतलब मान लीजिए कोई इंसान बहुत ब्रोकन है लेकिन बाहर से अपने आप को ऐसे दिखाएगा कि जैसे सबसे ज्यादा खुश वही है इंसान दुनिया में। तो पूरा ये कॉन्वर्सेशन उसी के हिसाब से। आपने ये भी देखा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में कि शेक्सपियर जो ज्यादातर चीजें बताता है या फिर जिसने भी कॉन्वर्सेशन रिवॉल्व होता है वो सबसे ज्यादा इसी पे ही एग्जाम्पल्स लेके होता है कि इसका एग्जाम्पल लिया, उसका एग्जाम्पल लिया, पूरी दुनिया के एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाया जाता है कि ये एक्ट ऐसे हो रहा है, तो जिससे आपकी चीजें समझ में आए। तो आप इस एक्ट को एज अ एक्ट ही समझिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना तो आपकी चीजें जो है वो मिक्सअप हो जाएंगी, सारे एग्जाम्पल्स मिक्सअप हो जाएंगे। तो हर एक एग्जाम्पल को आप ध्यान में रख के अपना मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ें। फिर पोर्शिया बोल रही है यहाँ पे, सॉरी पहले शुरू से देखते हैं। देयरफॉर दो गैडी गोल्ड हार्ट फूड फॉर मिदास। अब मिदास यहाँ पे कौन था? माइथोलॉजी के हिसाब से मिदास एक ऐसा इंसान था जो भी चीज टच करता था वो गोल्ड में बदल जाता था। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी कि वो उसने एक अपनी विश करी थी भगवान से कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसको भी मैं टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए, सोना बन जाए। तो वो अगर कोई चीज खाता भी था तो उसकी जो खाने की चीज थी वो भी गोल्ड में चेंज हो जाती थी। तो वो उस चीज से परेशान हो गया था। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बसानियो कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मैं टच करूं और वो भी गोल्ड में बदल जाए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उसको परेशानी होगी फिर। सो उसने गोल्ड को रिफ्यूज कर दिया कि मैं इनर आउट। उसने ज्यादातर इसमें गोल्ड को लेकर क्या बोला है, गोल्ड कैसेट को, कि इनर आउटर अपीयरेंस और आउटर अपीयरेंस को देखकर इंसान चूज करता है। सिर्फ आउटर जो है उसका सिर्फ उसको देखकर कर लेता है वो चूज, लेकिन जो उसका अंदर की चीज होती है उसको कोई नहीं देखता। बाहर की चीज देखकर सब चूज कर लेते हैं, तो मैं ये चूज नहीं करूंगा। ओके, फिर वो बोल रहा है अब वो बोल रहा है सिल्वर के बारे में। I'll none of thee, not none of thee, though pale and common drudge, teen man and man, but though miracle led, which leather threatened that dost, promise aught, thy paleness moves me more than eloquence, and here choose I joy be the consequence। अब वो यहाँ पे किस चीज के लिए बोल रहा है? सिल्वर कैस्केट के लिए, सिल्वर या फिर आप बोल सकते सॉरी लेड कैस्केट के लिए। लेड कैस्केट के लिए लेड कैस्केट के लिए वो लास्ट में बोल रहा है। अब सिल्वर के बारे में ये बोल रहा है कि सिल्वर क्या है, सिल्वर का क्या है, हर कॉमन मैन के पास रहता है। सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, सिल्वर के होते हैं, सब कॉमन मैन के पास दिखता है आपको, कॉमन सी चीज है सिल्वर, मैं क्यों चूज करूं इसको। फिर वो कह रहा है लेड को कि लेड में कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसको ही चूज करूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा मैं इसको चूज? क्योंकि लेड की कोई चूज नहीं करता लेड को सब सोचते हैं कि बेकार की चीज है, ये है वो है, फेंक देते हैं सब उठाकर। लेकिन मैं इसको चूज करूंगा क्योंकि लेड बहुत से ज्यादा लोग नहीं चूज करते। फिर अब पोर्शिया अंदर से ही खुश हो रही है, मतलब उसने ऑलरेडी चूज कर लिया लेड। बसानियो ने कहा ना कि मैं लेड चूज करूंगा, उसने लेड चूज कर ली। अब पोर्शिया को पता है कि हाँ ये आंसर ठीक है, उसने आंसर जो अपना लेड कैस्केट के लिए चूज किया है, उसका फॉर्च्यून जो उसने चूज किया है अपने लेड कैस्केट के लिए, वो ठीक है। तो अब पोर्शिया जो है अपने आप अंदर ही खुश हो रही है, उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, वो शी इज टू मच ओवरजॉयड कि अब मैं इससे शादी हो जाएगी मेरी, क्योंकि उसने सही चूज किया है। क्योंकि पोर्शिया के दिल में क्या था कि जो इंसान चूज करेगा सही कैस्केट उसकी उससे शादी हो जाएगी। तो अब बसानियो ने सही कैस्केट चूज कर लिया, तो पोर्शिया की इससे शादी होने वाली है। तो पोर्शिया को पता है इसका आंसर, लेकिन बसानियो ने भी अपनी वो नहीं खोली, कैस्केट नहीं खोली। उसने सिर्फ आंसर किया कि हाँ मैं इसको चूज करूंगा, लेकिन अभी तक उसने अपनी कैस्केट नहीं खोली है। तो पोर्शिया को पता है आंसर कि हाँ वो ठीक है। अब पोर्शिया अंदर से खुश हो रही है, वो कह रही है हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्ली टू एयर as doubtful thoughts and rash embarrassed despair and shuddering fear and green-eyed jealousy, oh love be moderate, allay thy casket in measure reign joy, scandalous excess I feel too much thy blessing, make it less for fear I suffer it। अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है कि मेरे जितने भी सारे डाउटफुल थॉट्स थे, जितनी भी मैं टेंशन में थी, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अपने लिए बोल रही है, अपने आप ही बोल रही है। और जितनी भी मेरी
खुशी है, भगवान इसे कम कर दो। क्या मैं मतलब मैं अपनी खुशी मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं संभाल भी नहीं पा रही हूँ अपने आप को, अपनी खुशी में संभाल भी नहीं पा रही, मेरी जो खुशी है थोड़ी बहुत कम कर दो भगवान। बसानियो, व्हाट फाइंड आई हेयर। अब उसने अपनी कैस्केट खोली, ओपनिंग द लेड कैस्केट, फेयर पोर्शियाज कन्फिटियर, counterfeit what demigod had come to near creation, move these eyes of weather riding on the balls of mine। अब यहाँ पे बसानियो क्या कह रहा है कि ये जो पिक्चर है पोर्शिया की, एक ऐसे देवता ने बनाई है, इसकी ऐसा लग रहा है जैसे एक देवता ने बनाई है उसकी पिक्चर, उस पेंटर के बारे में बोल रहा है वो। तो वो यहाँ कह रहा है इसकी जो आईज है, किसको कह रहा है वो, पोर्शिया की जो आईज है पिक्चर में, वो उसको कह रहा है कि बहुत ही मिराकुलस है उसकी आईज, और उसकी आईज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो मेरी आंखें घूम रही है या उसकी आंखें घूम रही है। वो खुद से अपने क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी आंखें घूम रही है या उसकी आंखें घूम रही है पिक्चर में। वो इतना ज्यादा खो चुका है उसकी आईज में, उसकी पिक्चर की आईज में खो चुका है वो। ओके, सीम दे इन मोशन। अब वो कह रहा है क्या ये घूम रही है या मैं घूम रहा हूँ। हेयर आर सफाइड लिप्स पार्टेड विद शुगर ब्रेथ। अब वो कह रहा है ये जो लिप्स हैं इसके जो बने हुए हैं, एक इनमें से शुगर ब्रेथ आ रही है, मतलब एक मीठी सी सांस, एक कैसे शुगर ब्रेथ मतलब मीठी सी सांस इसके अंदर घूम रही है। सो स्वीट अ बार शुड अंडर सच स्वीट फ्रेंड्स हेयर इन हर ears द पेंटर प्ले द स्पाइडर एंड हैड वोवन अ गोल्डन मेश टू entrap द हार्ट ऑफ men। कि इसके बाल जो हैं ये एक तरह से ऐसे हैं स्पाइडर के जाले की तरह कि हर कोई मैन अगर इनको छुएगा या फिर कुछ भी होगा तो इनमें अटक जाएगा, इनमें मतलब उसकी सारी ब्यूटी के बारे में वो तारीफ कर रहा है। अ गोल्डन मेश टू entrap द हार्ट्स ऑफ men, कि हर कोई इसके, हर इंसान का हार्ट जो है वो इसके अंदर ही उलझ जाएगा। फास्टर देन गैंड्स इन कॉम्बो बट हर आइज हाउ कुड ही सी टू डू दैम, हैविंग मेड वन मी थिंग्स इट शुड हैव पावर टू स्टील बोथ हिज एंड लीव इट्स अनफर्निश्ड। तो वो कह रहा है क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि इस पेंटर ने इसकी एक आंख बनाते हुए इसकी दूसरी आंख कैसे बना दी, मतलब एक आंख बनाकर उसने दूसरी आंख कैसे बना दी। अगर एक आंख जब वो बना रहा है तो वो तो इतना खो चुका होगा, एक आंख इतनी प्यारी बनाई होगी उसने, उसकी आईज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो कि इसकी आईज इतनी प्यारी बनाई है, तो जब वो एक आंख बना रहा होगा पहले, तो वो दूसरी कैसे बना पाया होगा कि एक आंख में इतना वो खो चुका होगा कि पता नहीं कैसे यार उसने दूसरी आंख बना ली होगी, इतनी प्यारी उसने आईज बनाई है उसकी। फिर and leave yet furnished. Yet look how far the substance my praise doth wrong this shadow in underprizing it. So for this shadow doth limp behind the substance, here's the scroll, the contaminate and summary of my fortune. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो लिप्स हैं और मतलब वो पूरी तरह से उसकी ब्यूटी के बारे में, उसके बालों के बारे में, उसके आंखों के बारे में, लिप्स के बारे में सबकी उसने तारीफ करी है। तो बाद में वो लास्ट में ये भी कहता है कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जितनी भी मैं तारीफ करूं ना पोर्शिया की पिक्चर के सामने, मतलब पोर्शिया के सामने उसकी पिक्चर कहीं स्टैंड नहीं करती। पोर्शिया रियल में इतनी खूबसूरत है कि उसकी पिक्चर जो है, जो उसने पेंटर ने बनाई है, वो कहीं स्टैंड नहीं करती उसके सामने। ठीक है, मतलब एक तरह से वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब जो आपको ध्यान भी होगा कि हर एक लेड या फिर हर एक कैस्केट जब भी कोई आता था प्रिंस, जब वो खोलता था तो उसके साथ एक लेटर भी होता था, स्क्रॉल। तो यहाँ पे भी आपको एक स्क्रॉल मिला है उसको बसाने को। तो वो कहता है लेट मी रीड माई फॉर्च्यून। तो वो यहाँ पे वो लेटर पढ़ रहा होता है, उसमें लिखा होता है यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू chance as fair and choose as true, since this fortune falls to you, be content and seek no new. If you be well pleased with this and hold your fortune for your bliss, turn you where your lady is and claim her with a loving kiss. अब यहाँ पे वो जो लेटर पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा होता है कि चलो तुमने जो इतना अच्छा चूज किया है, तुम अच्छी बात है कि तुम आउटर अपीयरेंस को देखकर ही चूज नहीं करते कोई चीज, इनर को देखकर करते हो। तो जब तुमने चूज कर ही लिया है तो ये बिल्कुल तुमने जो रियल चूज किया है, ट्रू चूज किया है, बिल्कुल फेक चूज नहीं किया तुमने। जो ये गोल्डन और सिल्वर था तुमने लेट चूज किया, ये बिल्कुल सही है तुम्हारा रियल, तुमने जो रियल चूज करते हो। ठीक है, तो वो कह रहा है तुमने रियल चूज कर लिया, वो अच्छी बात है, और अब तुम्हारी जो ये लेडी है तुम इसको क्लेम करो और इससे अपनी वाइफ की तरह अपना उसको क्लेम करो। और अब तुम्हें ये मिल चुकी है बीवी के तौर पे, तो तुम अब कोई और लड़की जाके मत देखना,
कोई और लड़के पे ट्राई मत करना, अब तुम्हें ये मिल चुकी है। ओके, तो अब वो कह रहा है जो तुम्हें मिला है उसमें खुश रहो, कभी तुम और लड़कियों पे जाके ट्राई मारो। और अब वो पीछे खड़ी है तुम्हारे, तुम उसको क्लेम करो विद अ लविंग किस। अ जेंटल स्क्रॉल, फेयर लेडी बाय योर लीव। ठीक है, तो आई कम बाय नोट टू गिव and to receive like one of the contendant in a prize that thinks me he had done well. I people's eye hearing applause and a universal shout, giddy in spirit till gazing in a doubt, where though peals of praise be his no, or so thrice fair lady stand I even so as doubtful whatever, whether what I see by true be true until confirmed, signed, ratified by you। अब वो कह रहा है कि मुझे कंफर्म करो भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ या मैं जीत चुका हूँ कैस्केट, मतलब कंपटीशन। मुझे यकीन दिलाओ, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा अभी भी। किससे कह रहा है? वो पोर्शिया से, कि मुझे यकीन भी नहीं हो रहा अभी कि मैंने तुम्हें जीत लिया है। ये जो यहाँ पे सब तालियां बजा रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। तुम मुझे बताओ कि हाँ ये ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है, मुझे किसी और पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने कर चुके हैं आज के लिए, काफी है। तो आप इसको दोबारा पढ़ना अपना, जितना भी यहाँ पे आपका। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ पे आपका पैराफ्रेज दे रखा होता है, दिस साइड, ये साइड जो आपको दे रखी होती है पैराफ्रेज की, इसको जरूर पढ़ा करिए। तो इससे आपकी जो जितना भी आपका ये वाली लैंग्वेज है और ये वाली लैंग्वेज है, दोनों में फर्क दिखता होगा आपको। तो इस वाली लैंग्वेज ये ज्यादा डिफिकल्ट है और ये जो लैंग्वेज है ये आपकी इजी पड़ेगी अंडरस्टैंड करने में, सब चीजें। तो आप इसको जरूर पढ़ा करिए, जिससे कि आपकी जो जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी आसान हो जाए पढ़ने में। और जो आपको मीनिंग्स नहीं समझ आए वो आपको मीनिंग्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना काफी है। फॉर नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग रेस्ट ऑफ द सेशन। नेक्स्ट में मैं सारा एक्ट 3 सीन 2 कवर कर दूंगी और नेक्स्ट में मैं सीन 3 भी स्टार्ट कर दूंगी। तो सीन 3 भी वैसे छोटा ही है थोड़ा बहुत, तो इतना ज्यादा वो भी नहीं होगा। Next scene for the next part. Stay happy and stay tuned. If you like this video, please hit the like button, share my video as much as you can, and yeah, if you have any queries and doubts, you can ask me or DM me on the Instagram. I'll be available for you. So hit the bell icon to never miss an update. Thank you for watching.